एवरीवन, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर इंग्लिश टीचर, और हम कर रहे हैं आपके इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन आंसर्स जो कि कंटिन्यू हो रहे हैं, ये वही वाले हैं। सो भाई उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि भाई अब ई विद्यार्थी आपको दे रहा है फ्री डाउनलोड। जो चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज। यहां पर आप कर सकते हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस, साथ ही साथ आपको मिल जाने वाली है एक समरी भी और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस जो हम ढूंढ ही रहे होते हैं कि कहां मिल जाएंगे, है ना। तो भाई ये वीडियो पूरी देखेंगे, उसके बाद जो चाहिए वो डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही मजेदार करने वाले हैं। हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन सुनेंगे और फिर उस कॉन्वर्सेशन के आधार पर कुछ सवालों के जवाब देंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। तो चलिए लिसनिंग सेक्शन शुरू करते हैं। अब जो कॉन्वर्सेशन आप सुनेंगे ना, उसे बहुत ध्यान से सुनना है। रेडी? ओके, सो द इंस्ट्रक्शन इज you will listen to a conversation between a son and his mother. As you listen, select 4 true statements from 1 to 7 given below. इसका मतलब है कि आप एक बेटे और उसकी माँ के बीच की बातचीत सुनेंगे और सुनते सुनते आपको नीचे दिए गए 7 स्टेटमेंट्स में से 4 सही स्टेटमेंट्स चुनने हैं। Got it? Let's listen. Amma, could you help me with this project? Why not? What's the project about? It's about the Chipko movement. I have to make a PowerPoint presentation and talk about it in class. That's good. Chipko movement was all about hugging trees to prevent them from being cut, isn't it? Such an inspiring movement it was. Yes, it was the first time that common people came together for the noble cause of saving trees. It showed how people can also make a difference. Have you heard or read about something similar? Yes, of course. The success of the Chipko movement led to the Apiko movement. Really? Doesn't Apiko mean hugging in Kannada? So did they also hug trees to protect them? Yes, they did. In this movement, people not only hugged trees to protect them, but also regenerated the forest areas in the Western Ghats. That's great. This reminds me of what my teacher shared about Salamarada Thimaka last week. She is a Padma Shri awardee. What an amazing personality. I've heard about her, and I'm interested to know what your teacher has shared with you. She is an Indian environmentalist who has been planting trees since 1948. She's planted over 8,000 trees in the area around her village. Wonderful. Incredible. That is one superwoman. But do you know who the forest man of India is? Yes, I've read about him. It is Jadav Bayang from Assam. He too is a Padma Shri awardee. Isn't he the one who single-handedly turned a barren land of around 1,000 acres into a lush green forest? He did so by planting nearly 40 million trees. Yes, you're absolutely right. It was not something that happened overnight. It took him 30 years to achieve this. This forest has become a habitat for different kinds of animals, including migratory birds. Fascinating, isn't it? I read a book and watched a documentary in school about him, which has really inspired me. I'm glad that you have begun to care about the environment too. तो बच्चों, ये थी कन्वर्सेशन। उम्मीद है आपने ध्यान से सुनी होगी। अब चलो इन 7 स्टेटमेंट्स को देखते हैं और पता लगाते हैं कि कौन से 4 स्टेटमेंट्स सही हैं। ठीक है, तो चलो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। नंबर 1, द मदर encouraged her son to deliver a presentation on the Chipko movement. Number 2, the son was surprised to know about the Apiko movement. Number 3, the son agreed that the Chipko movement was about people uniting to make an impact. Number 4, the mother expressed a desire to share more details about Salumarada Thimmakka. 5, the mother was curious to hear about Salumarada Thimmakka. 6, the mother and son were in disagreement about the work of Jadav Payeng. And number 7, the son found the information on Jadav Payeng wonderful. तो अब जरा सोचिए, आप चाहें तो यहाँ पॉज करके अपने जवाब अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ऑलराइट, चलो अब अपने जवाब चेक करने का टाइम आ गया है। देखते हैं आपके कितने जवाब सही हुए। And the correct statements are numbers 2, 3, 5 and 7. Well done if you got them right. चलो अब एक-एक करके समझते हैं कि ये स्टेटमेंट्स सही क्यों हैं। स्टेटमेंट नंबर 2, द सन वॉज सरप्राइज्ड टू नो अबाउट द एपिको मूवमेंट। ये बिल्कुल सही है। आपको याद है जब माँ ने एपिको मूवमेंट के बारे में बताया तो बेटे ने कैसे चौंक कर कहा था? रियली? उसके इस रिएक्शन से पता चलता है कि उसे इस मूवमेंट के बारे में पहले नहीं पता था। स्टेटमेंट नंबर 3 भी ट्रू है। बेटे ने खुद कॉन्वर्सेशन में कहा था, इट शोड हाउ पीपल कैन ऑल्सो मेक अ डिफरेंस। इसका सीधा मतलब है कि वो इस बात से पूरी तरह सहमत था कि आम लोग भी एक साथ आकर एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं। अब देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 5। ये भी सही है, क्योंकि जब बेटे ने सालुमरादा थिमक्का का जिक्र किया तो माँ ने कहा, आई एम इंटरेस्टेड टू नो व्हाट योर टीचर हैज शेयर्ड विद यू। इस लाइन से उनकी क्यूरियोसिटी यानी जानने की इच्छा साफ साफ पता चलती है। और हमारा आखिरी सही जवाब है स्टेटमेंट नंबर 7। जादव पेंग के बारे में बात करते हुए बेटे ने फैसिनेटिंग शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब होता है बहुत ही दिलचस्प। उसने ये भी कहा कि वो उनसे इंस्पायर हुआ है, तो ये क्लियर है कि उसे जादव पेंग के बारे में जानकारी वंडरफुल लगी।
बहुत बढ़िया बच्चों, वेल डन। तो आई होप आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय क्यूटीज। तो करना क्या है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।